Happy Diwali students, how are you all? So today I'm going to tell you about sound, chapter 13, class 8th CBSE. So this is sound, how sound is produced and what are its characteristics and how does it propagate from one medium to another medium. Okay, let me tell you, how would you recognize the sound? Just tell me, how would you recognize the sound? By hearing it? Am I right? When you hear the sound, then only you are able to, recognize what sort of song or what sort of thing is that. Is it clear? Suppose, let me sing one thing. तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है. जैसे ये आप मैंने बोला अभी जो आपको कैसे सुनाई पड़ रहा है, बिकॉज यू आर हियरिंग द वाइब्रेशंस through your ears, so you recognize what sort of sound you are hearing. Suppose you are hearing any sound which is unknown to you, then you will not be able to recognize that sound. Okay, so let me introduce you with sound. What is sound? Sound is a form of energy which enable us to think, which enable us to hear the things, right? So what is sound? Sound is a form of energy which enable us to hear. Okay, जो हमें सुनने में मदद करता है, ठीक है, वो साउंड होता है. Okay, so how does sound produce? I already told you in the class by tuning fork. So sounds produced by vibrations, right? Vibrations. Sounds produced by vibration. Just listen. When I am hitting this board, so the vibrations are passing from solids, right? So it gets disturbed and it let the surrounding particle disturbed and they get a radiation, and which radiations are sound waves. They just take the form of waves, and these sound waves are reaching to our ears and we are able to hear. Okay. So sound, what is the unit of the sound? The unit of the sound is decibel. Sound is measured in decibel. It is also written as dB. Okay, sound is measured in decibel and it is also written as dB. Decibel. Okay. Suppose you have heard about noise pollution, no? Air pollution, water pollution, electronic waste, lot of things you have studied. In the same series, noise pollution is also there. So what is noise pollution? When our ears are not feeling pleasant. When we are not feeling pleasant at all by hearing the sound, then that sound is supposed to be the noise. Okay? Then what is music? What is music? What is music? The sound which feels pleasant. When we hear it, it feels pleasant. Okay? Like you have heard the song of Beethoven, nothing's gonna change my love for you. You feel good now after listening this? Okay. So music and noise, this is the major difference between the noise and music. Okay. So let me tell you one more thing about sound. That sound travels through medium. If there is no medium, sound cannot travel. Are you know? Is it clear? Sound requires medium. I can show you with the example. Okay? This is marker, this is solid. I am hitting it. You are able to listen the sound. I am hitting it in air. Are you able to listen the sound? Still it is producing the sound, but you are not able to listen because the speed of the sound is maximum in solid, less than solid in air, less than solid in water, and least in gas. Okay, least in gases or air. Okay, so sound travels in the form of wave. So let me explain you about sound wave and its nature. Okay,
So what is sound wave and what is its nature is? How does sound propagate from one medium to another medium? Children, just listen very carefully. I am speaking. Right now I am speaking through my vocal cord. मेरे vocal cord में बेटा यहाँ पे vibrations हो रहे हैं और वो vibrations आ करके हमारी जबान से बाहर निकल रहा है और जैसे ही मुंह से बाहर आया आसपास सभी तरफ हवा ही हवा है और उन हवा के पार्टिकल्स को मींस एयर के पार्टिकल्स को वो वाइब्रेट कर देता है एंड दैट वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स लेट द अदर पार्टिकल्स आल्सो गेट्स वाइब्रेट and thus the sound propagates from one medium to another medium, right? Are you getting that? Okay, so let me tell you how does it happen. See, okay, so this is a sound wave. You can see if you draw a line like that, this is a sound wave. Like this sound travels. So this is the maximum distance covered by the vibrating orbit. Okay, vibrating particle means मान लो साउंड यहां से प्रोड्यूस हुआ तो जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो ऊपर नीचे मीन्स कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन इस तरीके से होता है. मतलब समझे नहीं समझे? टू एंड फ्रो मोशन होता है ऐसे 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 ऐसे, है ना? जैसे अमीबा का मोशन कैसे देखा है आपने? ऐसे 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 संकुचन विकुंचन संकुचन विकुंचन लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जस्ट लाइक दैट. सो दिस इज द हाईएस्ट डिस्टेंस इन द क्रेस्ट. इसको क्रेस्ट कहते हैं एंड दिस इज द हाईएस्ट डिस्टेंस इन द ट्रफ. तो ईदर यू कैन टेक ट्रफ ईदर यू कैन टेक क्रेस्ट, बोथ आर सेम. तो इट इज टर्म्ड एज ए एंड ए इज नोन एज एम्पलीट्यूड. A is known as amplitude. आपने देखा होगा एम्पलीफायर्स आते हैं म्यूजिक को बढ़ाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, वर्जन को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर्स आते हैं, राइट? लॉट ऑफ सॉन्ग्स आर आल्सो देयर बेस्ड ऑन एम्पलीफायर, है ना? वो तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर, राइट? दैट इमरान खान हैज sung this song. Okay, so let me tell you one other thing which is very important. And the distance between one crest to another crest is known as wavelength and this is denoted as lambda. Okay, this is lambda, lambda, lambda. Okay, so this distance is known as wavelength. This is crest, this is trough. Okay, so this is how sound wave work out, right? अगर मैं graphical representation बनाऊं बेटा तो साउंड प्रोड्यूस हुआ इस तरीके से, फिर ऐसे 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 हुआ, ऐसे 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 गया, फिर ऐसे 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 हुआ, फिर ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे हुआ. आप देख रहे हैं कुछ एक शॉर्टर बैंड बन रहा है, एक लार्जर बैंड बन रहा है. तो ये जो यहाँ पे ये शॉर्टर लार्जर बैंड बन रहा है, ये है क्या आपका? बताइए. रेयरफैक्शन. ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन. इस तरीके से साउंड वेव कुछ इस तरीके से बढ़ती है. इज इट क्लियर? Okay, so I had already told you about the musical instruments. How does musical instruments are producing the sound? So all are vibrations itself. अगर आप तबला की बात करिए, ढोलक की बात करिए या ढपली की बात करिए तो उसमें जानवरों की खाल की एक मेम्ब्रेन बनाई जाती है और जो भी ढपली वाला होता है वो उसको ऐसे ऐसे बजाता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? है ना? ऐसे ही आपने फ्लूट देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो फ्लूट बजाते हैं. तो फ्लूट में भी आपने देखा होगा यहां पे फ्लूट का मैं शेप बनाने की कोशिश करता हूं. यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लूट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूट. ओके, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूट. सो हियर some pores are there, the air is blown from here and these reeds are producing the sound, right? इनको reeds कहते हैं. Okay, I think you all have seen guitar. Let me draw the rough figure of guitar. I'm not good at art, but let me try dear. मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर सकता हूं कि गिटार बनाऊं. सपोज करो ये गिटार है, यहाँ पे एक ओपन कैविटी होती है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से वायर्स कनेक्ट होते हैं बेटा.
and these are known as strings. Okay, so when guitarist, you have seen the guitarist, वो गिटार जब बजाता है ऐसे ऐसे strings को create करता है, then that is also creating vibrations and thus it is producing the sound, right? Am I making sense? Okay, so speed of sound is maximum in solid, less than solid in water and least in air. Okay, तो साउंड के बारे में ये चीजें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी. अब हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं जिसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि लाउडनेस क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है और पिच क्या होती है. तो अक्सर आपने देखा होगा या अक्सर आपने सुना होगा कि जब कोई लड़की चिल्लाती है कहीं पे भी, तो उस लड़की की आवाज जो है ना काफी दूर तक जाती है ना. लता मंगेशकर की आवाज अगर आप जला दीजिए गाने को, तो लता मंगेशकर की आवाज क्या होगी, काफी दूर तक सुनाई पड़ती है, राइट. लेकिन वही मोहम्मद रफी की अगर हम बात करें, तो मोहम्मद रफी की आवाज एक कमरे में बहुत ज्यादा देर तक गूंज सकती है, लाउडनेस हाई हो सकती है, लेकिन ज्यादा दूर तक आवाज नहीं जाएगी. आर यू गेटिंग दैट? तो एक चीज तो ये आपने बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा होगा कि मेल का आवाज जो होता है, दैट इज लाउडनेस इट हैज बट पिच इज लेस, लाउडनेस इज हाई. ओके, बट इन फीमेल्स में बेटा क्या होता है, लाउडनेस जो होती है वो लो होती है और पिच क्या होती है, वो हाई होती है. तो हम बात करेंगे यहाँ पे पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होती है. अक्सर आपने देखा होगा डीजे वाले जो गाना बजाते हैं, डीजे वाले, तो उनसे बोला था पिच हाई करो यार, पिच हाई करो, बेस बढ़ाओ, बेबी को बेस पसंद है, लाइक दैट है. तो ये इसलिए क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन आप समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको. आज दिवाली है तो बहुत ज्यादा मैं समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत समझा सकूं. सो लाउडनेस और पिच की बात आ रही है यहां पे. देखो बेटा सुनो, द साउंड हुज एम्पलीट्यूड दैट इज ए, अभी हम साउंड वेव बनाए थे उसमें आपको हमने एम्पलीट्यूड बताया था. द साउंड हुज एम्पलीट्यूड और ए इज हाई इज नोन एज लाउड साउंड. ठीक है, आई बात समझ में. लाउड साउंड किसको कहेंगे, जिसका एम्पलीट्यूड हाई हो, राइट. अब एम्पलीट्यूड क्या होता है फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है ना. तो आपको मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, दो प्रकार के, लाइक आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू वेव्स एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच वन इज लाउड, विच वन इज लेस लाउड. सी ये ठीक है, एक साउंड वेव हमारा ये है, ओके, और एक साउंड वेव हमारा ये. अब आप यहां पे डिसाइड कर लीजिए कि किस साउंड वेव में लाउडनेस ज्यादा है, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इस वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये डिस्टेंस इसकी ज्यादा है ना बेटा, इसकी अपेक्षाकृत कम है. तो दिस इज लाउड साउंड एंड दिस इज लेस लाउड साउंड. आई होप ये चीज आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है ना, लाउड साउंड और लेस लाउड साउंड. अब लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, फ्रीक्वेंसी क्या होती है. ओके, फ्रीक्वेंसी का आपने टर्म सुना होगा बेटा, जब रेडियो आपने देखा होगा, रेडियो जब आप ट्यूनिंग करते हैं तो उसमें हर्ट्ज लिखा होता है. 101.1 हर्ट्ज पे रेड एफएम आता है, या 107.8 पे मिर्ची आता है. इस तरीके से कई सारी फ्रीक्वेंसी रेंजेस दी होती हैं. तो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम. फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर यूनिट टाइम. एक यूनिट समय में जितनी बार ऑक्सीलेशन हो रहा है वो कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी. अब देखो जैसे ये साउंड है, अब ये समझ रहे हैं, तो कितने ऑक्सीलेशन हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीलेशन हुए, ठीक है ना. अब यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा साउंड वेव ले लेते हैं, तो ये ऐसे 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 ऐसे, तो यहां 1 2 3 ही हुआ.
तो अब बताइए किसमें किसकी पिच हाई है? जिसमें ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहां ज्यादा है, तो ये हाई पिच्ड साउंड कहलाएगी, हाई पिच्ड साउंड कहलाएगी, और ये हमारी लो पिच्ड साउंड कहलाएगी, राइट? सो ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर बिजी in burning crackers and all, but my one message is there: please celebrate green Diwali. Do not burn too much crackers because it is creating lot of pollution, and you know pollution causes carbon dioxide, and carbon dioxide is greenhouse gases which may cause the temperature of earth's raise, right? So till then, Hari Om. All the best. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.